बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। Hello student, how are you? Hope all you are fine, and I am here to teach you lecture number 1, unit 9, class 10, chemical equilibrium. This is the first lecture and introductory lecture for class 10, chapter number 9. In this lecture, we will discuss some few terms which will be used later on in this chapter. So keep in mind all these terms. So in this chapter, we are dealing with equilibrium, and as a chemical equilibrium, when a chemical reaction starts, there is some stage when the number of moles of reactant is equal to number of moles of product. That state will be called as chemical equilibrium. Suppose, for a general example, if I have a seesaw, so in this, two kids are sitting, and a stage will come that this seesaw will remain straight. So when there is a stage when there is still, so we can say static equilibrium. And when equilibrium is attained and molecules are moving, so it will be called as dynamic equilibrium. So for chemical equilibrium, I have reactant A and B. These are called as reactant, this is called as product. When a chemical reaction starts, keep in mind we have maximum number of reactant and we have zero product. So there are two possibilities. First, when all the reactant completely change into product and reaction stops, it means this is complete chemical reaction. Chemical reaction. Sometimes it happens when we add some reactant, they react together and product form. After forming some amount of product, a time will reach that that product will again decompose and reconverted into reactant. Such reaction will be called as reversible reaction, and it is incomplete chemical reaction. Incomplete chemical reaction, and it never goes to completion. Never goes to completion. The complete reaction is unidirectional and it is two-directional. Suppose I have a container, and if container is open, so what will happen? I will pour some amount of water. So water evaporate at all temperature. Since the container is open, so what will happen? The water molecule will evaporate out and the amount of this water decreases as the time passes on. So water molecules evaporate when container is open, and if I close the container, so what will happen? The amount of water and vapor will be remain there. There is no escape of water vapors. So after some time, the water molecule evaporate, and after some time there is enough number of vapors, and there is no way to escape that vapor from the container. So what is going to happen? These vapors are condensed, come back and change again into vapors. So we can say that in this case, forward reaction is equal to backward reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of reverse or
backward reaction, or I can say rate of evaporation. Rate of evaporation. Evaporation is equal to rate of reverse or rate of condensation. Or I can say number of moles of reactant is equal to number of moles of product. So this stage will be called as chemical equilibrium, reversible equilibrium, and particularly it is dynamic equilibrium. Why dynamic equilibrium? There is a motion, continuous motion of evaporation of water molecule and condensation of vapor molecule. If it is not so, it is static. Static कहते हैं साकेत, रुका हुआ, इक्विलिब्रियम में आ जाता है लेकिन स्टॉप होता है। इसके बाद हमारे पास है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास कब आएगा? जब हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाए और कंटेनर क्लोज हो, तो उस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो दोबारा चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये रिएक्शन हमने आपको बताया इनकम्प्लीट है या फॉरएवर होता रहेगा। इसको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें एडिशन या डिलीशन करें या प्रोडक्ट आप निकालते चले जाएं तो एक वक्त ये भी आ जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाए। उस वक्त ये जो आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी तरह आपके पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन मेरे पास आपके पास कोई रिएक्टेंट है ए और बी, वो रिएक्ट हुए, रिएक्ट के नतीजे में मेरा प्रोडक्ट आ गया। जब प्रोडक्ट आ गया, अब प्रोडक्ट दोबारा चेंज नहीं हो रहा वापस रिएक्टेंट में, तो ये आपके पास कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हो गया और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक और टर्म है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, और उस वक्त रिएक्टेंट की मिकदार मैक्सिमम होगी और स्टार्ट में रिएक्टेंट की मिकदार मैक्सिमम होगी और प्रोडक्ट हमारे पास जीरो होगा। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड को हम इस तरह इस एरो से जाहिर कर देते हैं, सिंगल हेडेड एरो के साथ। और इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन कब हो जाएगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास ज़्यादा हो जाए और रिएक्टेंट कम हो जाए, तो प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होके हमारे पास दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उसको मैं एक एरो से जाहिर करूँगा और उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड से रिवर्स होगी और ये रिएक्शन कंटिन्यूसली होता जाएगा। इसके अलावा 2-3 और टर्म है। एक आपके पास है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का बेटा फॉर्मूला आपने याद रखना है, C = N/V। N आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम आपके पास है जो वो हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। तो यूनिट इसका क्या होगी आपके पास? डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल विदाउट ई, और वॉल्यूम की होती है डेसीमीटर क्यूब, और लीटर भी इसको कहते हैं क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। इसके अलावा एक और टर्म है, वो है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये हमारा हम कहते हैं स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसको जरा समझिए बेटा। कोई केमिकल रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है?
बास केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं कि बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, तो उनका रेट फास्ट होगा, फास्ट रिएक्शन कहलाएंगे। और बास केमिकल रिएक्शन है कि वो महीना लेते हैं, साल ले लेते हैं, तो वो क्लास कहलाएंगे, उनकी स्पीड या उनका रेट आपके पास वो क्या कहलाएगा, स्लो या स्लो रिएक्शन कहलाएगा। अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इसको मिला दो और क्लोज कंटेनर में, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल आ जाए। ये आपके पास हो गया, आपके पास फास्ट केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर मैं आयरन पीस ले लूँ और उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करूँ, तो वो ऑक्सीजन और उसके नतीजे में मेरे पास वो आएगा रस्ट, वो हो सकता है 5 महीने में आ जाए, 6 महीने में आ जाए, तो इसका रेट आपके पास होगा स्लो। तो आज के लेक्चर में इन टर्म्स को आपने ज़रा जहन में रखना है बेटा, क्योंकि आने वाला लेक्चर में बार बार ये इस्तेमाल होंगे। मैं एक दफ़ा और रिपीट कर लेता हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आ जाए और उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में, तो वो कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आपके पास प्रोडक्ट आ गया और सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में आ गया, ठहर गया है, तो वो कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बाज़ इक्विलिब्रियम ऐसे होते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, और उसके नतीजे में हमारे पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जारी है, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है रिएक्टेंट में। तो एट दैट स्टेज मॉलिक्यूल की मूवमेंट जारी है, और डायनेमिक का मतलब ही है मूवमेंट, इसका मतलब हो गया स्टैटिक, नो मूवमेंट, ये आपके पास मूवमेंट हो गया। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन भी होता है जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे में चेंज होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, उस किस्म का इक्विलिब्रियम कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसकी डायरेक्शन 2 डायरेक्शनल है। तो ये आपके पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। जर्नल एग्जामिनेशन से मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट ए और बी था, स्टार्ट में मैक्सिमम था, सी और डी नहीं था। जब सी और डी की एक इनफ मिकदार आ गई तो सी और डी दोबारा हमारे पास ए और बी में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपके पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगी। इसकी एग्जाम्पल आगे चल के हम करेंगे। इसी तरह फॉरवर्ड रिएक्शन है, हमेशा याद रखें स्टार्ट में हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जब भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, फॉरवर्ड। क्यों? उस वक्त मेरे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, रिएक्टेंट मेरे पास, तो इसको एक उससे समझ ले, जब भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो मेरे पास रिएक्टेंट मैक्सिमम है। जब रिएक्टेंट मैक्सिमम है तो ये ए और बी और आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, तो ये आपके पास आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, रिएक्टेंट की मिकदार कम होगी, और ये हमारे पास आहिस्ता 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 प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ये कौन सा आपके पास हो गया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन। और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, यहाँ इस स्टेज में फॉरवर्ड में हमारे पास मैक्सिमम या इरिवर्सिबल में मैक्सिमम प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। लेकिन दूसरी कंडीशन जो हमारे पास रिवर्सिबल मैंने बताई, तो उसमें कैसा होगा, रिएक्टेंट मेरे पास मैक्सिमम था, ए और बी आहिस्ता आहिस्ता मिले, और इसी तरह इन द मीन टाइम सी और डी आने शुरू हो गए। तो अब रिएक्टेंट फुल डिसअपियर नहीं हो रहा, एक वक्त आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो वो उसमें आपके पास वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे मैंने बता दिया, स्टार्ट में कोई भी चाहे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो चाहे इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास 0 है। उसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन कब होता है, बैकवर्ड रिएक्शन जब होता है जब हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाए, कंटेनर क्लोज हो, ये कुछ कंडीशन है, कंडीशन का हम बाद में बात करेंगे। तो अगर हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ जाए और कंटेनर क्लोज हो तो वो डिकम्पोज होके दोबारा हमारे पास रिएक्टेंट पे चेंज हो जाएगा, और उस वक्त डायरेक्शन जो सी होगी वो उसके रिवर्स होगी है, इसलिए इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। इसके बाद कुछ और टर्म है, concentration, number of moles of a substance in a given volume is known as concentration. C for concentration, N is the number of mole and V is the volume. The unit of concentration is mole per decimeter cube or molarity.
और बाजू का कंसंट्रेशन इस तरह भी होता है मोल्स पर लीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। एक और टर्म बार बार आएगी इस चैप्टर में, वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और रेट ऑफ और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो कोई केमिकल रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्लो होता है तो हम कहते हैं इसका रेट या उसकी स्पीड स्लो है, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो हम कहते हैं उसका रेट फास्ट है। तो दो किस्म के आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, स्लो केमिकल रिएक्शन और फास्ट केमिकल रिएक्शन। Okay, now we will explain all these terms with the help of graph. So I plot x-axis and y-axis. In x-axis I take time, and in y-axis rate of chemical reaction. So I have mentioned all these terms. So what happened at the start, if I plot a graph, this is reactant A and B. As the time passes on, reactant decreases and the direction is forward. So A and B combine to form product C and D. In the meantime, concentration of reactant decreases while the concentration of product increases. So product increases, and this is the point where product form. After some time, it will be a straight line. A straight line means that this chemical reaction has achieved an equilibrium, and this is a dynamic equilibrium. And in this case, when enough number of product C and D form, they change back into reactant A and B. So this is the graphical representation of forward reaction, reverse reaction, chemical equilibrium, rate of chemical reaction, and all these are presented in a graph. Thank you.